Look at this formula number 4. In this formula 4, it is the same cos x minus y. So formula that we have discussed, cos x plus y formula हम लोगों ने डिस्कस किया. दिस इज फॉर्मूला फॉर cos x minus y. इट इज cos x cos y sin x sin y. तो कैसे आया? रिप्लेसिंग y by minus y in identity 3. तो आइडेंटिटी 3 क्या थी हमारे पास? आइडेंटिटी 3 इज, लेट मी राइट इट हियर, it is cos x plus y. That identity is cos x cos y minus sin x sin y. तो ये आइडेंटिटी थी हमारे पास. सो इस आइडेंटिटी में क्या किया हम लोगों ने? इस आइडेंटिटी को ऑब्टेन करने के लिए y को रिप्लेस कर दिया माइनस y से. y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस y एवरीवेयर. जहां पे भी y था वहां पे माइनस y कर दिया. यहाँ पे भी माइनस y लिख दिया है और यहाँ पे भी माइनस y कर दिया है. राइट. एंड ऑल दैट थिंग्स आर सेम. It is cos x cos minus y sin x sin minus y. So we know the identity that sin minus y is equal to, sin का माइनस बाहर आ जाता है, it is equal to sin y. So this thing we have already discussed. And cos minus y can be written as, तो cos का जो माइनस होता है that minus will disappear. It can be written as cos y. So these two things we have already discussed. Now let us put that two things here in this formula. So it becomes cos x minus y is equal to cos x as it is, cos minus y को लिख सकते हैं cos y, sin x sin minus y का माइनस बाहर आ जाएगा by using this identity, it become plus. So ये आइडेंटिटी है 4. So you must remember this identity 4. So ये प्रूव हो गई है. देखिए यहाँ पे this identity and this identity is same. Now look at this identity 5th. ये हम लोग क्लास 10 पे पढ़ा था, cos 90 minus x is equal to sin x. So हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos 90 minus theta is equal to sin theta. So that is the same. 90 की प्लेस पे पाई बाय 2 लिखा हुआ है. Right. If we replace x by pi by 2 and y by x in identity 4, we get this thing. तो हमें जो, अगर हम लोग पीछे वाली जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में अगर उस आइडेंटिटी में जो प्रीवियस आइडेंटिटी है cos x minus y उसको यूज करेंगे, then we will get this thing. Sin 9 cos 90 equal to 0. So then and sin 90 equal to 1, it equal to sin x. And look at this formula, sin 90 minus theta equal to cos x. तो ये भी हमें आइडेंटिटी 5 से मिला है, cos sin x minus y वाली आइडेंटिटी से. तो यहाँ से आप देखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी 5, द सेम आइडेंटिटी वी विल गेट दिस फॉर्मूला. राइट. सो 10th क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने. लुक एट दिस फॉर्मूला, sin x plus y कैन बी रिटन एज sin x cos y cos x sin y. सो ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है? लेट अस डेराइव इट. देखिए sin x plus y कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos 90 minus theta. ठीक है. sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 minus theta. तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? x plus y है. तो यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे? x plus y. तो ये देखिए cos 90 minus x, तो माइनस x इसके साथ ले लिया है 90 के साथ, एंड इट बिकम माइनस y. तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos x minus cos y. So it is cos x cos y plus sin x sin y. So by applying that identity, it becomes sin x, this cos x as it is, it becomes cos x, this sin x sin y as it is. So this is the proof of this identity. सिमिलरली ये sin x माइनस y की आइडेंटिटी हमारे पास क्रिएट होगी. इसमें अगर y को रिप्लेस करेंगे माइनस y से इन दिस आइडेंटिटी, देन वी विल गेट sin x माइनस y इक्वल टू sin x cos y माइनस cos x sin y. राइट. दिस इज आइडेंटिटी नंबर 8. लुक एट दिस आइडेंटिटी नंबर 9. By taking suitable values of x and y in identity 3, 4, 7, 8, we get the following results. तो पीछे जो आइडेंटिटी डिस्कस की है, तो देखिए cos 90 plus x will become minus sin x, sin 90 plus x will become cos x, cos pi minus x minus cos x, sin pi minus x sin x.
कोस पाई प्लस एक्स माइनस कोस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस 2 पाई माइनस एक्स कोस एक्स, and sin 2 pi minus x minus sin x, right? Similarly, result for tan x, cot x, sec x, cosec x can also be obtained by the result of sin x और cos x के रिजल्ट से रेसिप्रोकल करके हम लोग tan, cot, sec, cosec के रिजल्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? Look at this identity number 10. In this identity, if known of the angles x, y, x plus y is odd multiple of pi by 2. अगर x, y और x plus y pi by 2 के odd multiple नहीं है, अगर odd multiple होंगे तो वो 0 हो जाता है. Look at this. This is the important identity. Tan x plus y can be written as tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. इसका प्रूफ भी दे रखा है. If it is non-multiple, it follows that cos x cos y are non-zero. तो tan x plus y को लिख सकते हैं sin x plus y upon cos x plus y. sin x plus y की आइडेंटिटी हम लोगों ने देखी थी, ये cos x plus y की आइडेंटिटी है. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए cos x cos y से. तो देखिए cos x cos y cos x cos y cos x cos y cos x cos y से डिवाइड कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को. तो इससे क्या होगा, यहाँ से cos y कट जाएगा तो sin अपॉन cos tan आ गया. यहाँ पे देखिए cos x कट गया तो sin अपॉन cos फिर से tan y आ गया. यहाँ पे cos x से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा. यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, sin अपॉन cos आ गया tan और sin अपॉन cos आ गया tan y. So this is the identity number 10, right? Now look at this identity number 11 here. So this identity is tan x minus y. So ये आइडेंटिटी पिछले वाली आइडेंटिटी से हमें ऑब्टेंड हो जाएगी अगर y को हम लोग रिप्लेस कर दें माइनस y से. If y is replaced by minus y in identity 10, so then we have obtained this identity x minus y. तो देखिए यहाँ पे x प्लस माइनस y से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और tan माइनस y होता है हमारे पास माइनस tan y. सो यहाँ से हमने ये भी यूज किया है, tan माइनस y कैन बी रिटर्न एज, जो इसका माइनस होता है बाहर शिफ्ट हो जाता है, इट इज tan y, right? Look at this identity number 12. If none of the angles is a multiple of pi, अगर कोई भी एंगल पाई का मल्टीपल नहीं है, पाई का मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा. देखिए कोट की आइडेंटिटी हो गई है कोट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स. इफ नन ऑफ द मल्टीपल ऑफ वाई, साइन एक्स साइन वाई के फॉर्मूले से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं. कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, कोस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, साइन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, साइन एक्स प्लस वाई. ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं. और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करेंगे साइन एक्स साइन वाई से, सो देन वी विल गेट दिस आइडेंटिटी एज जो tan की आइडेंटिटी मिली थी ठीक उसी की तरह से, राइट? लुक एट दिस आइडेंटिटी 13. ये cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी है. cos x माइनस वाई कैन बी रिटर्न एज cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस cot x. तो ये आइडेंटिटी हमें मिलेगी यहाँ पे आइडेंटिटी 12 से, अगर उसको y को रिप्लेस कर दें माइनस y से. लुक एट दिस आइडेंटिटी नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. ये cos 2x के लिए आइडेंटिटी होती है, cos 2x, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड मोस्ट कॉमनली यूज आइडेंटिटी इन दिस चैप्टर. सो इसमें होता क्या है, cos 2x को हम लोग cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं. कहां से आई है आइडेंटिटी, ये देखिए. वी नो दैट cos x प्लस y की आइडेंटिटी होती है cos x cos y माइनस साइन x साइन y. अगर y को भी x से रिप्लेस कर दें तो cos 2x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. तो पहली आइडेंटिटी ये ऑब्टेन हो गई, ये पहले वाली, ठीक है. अगर साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दें 1 माइनस कोस स्क्वायर से, क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, राइट? यस. तो यहां से अगर साइन स्क्वायर हम लोग फाइंड करें, इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और अगर कोस स्क्वायर फाइंड करें, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग रख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो हमें सेकंड आइडेंटिटी मिल जाती है, सेकंड वाली, ठीक है. ठीक इसी तरह से अगर आप कोस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रखते हैं तो ये मिलती है 1 माइनस
कोस स्क्वायर की प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाली आइडेंटिटी मिल जाती है, थर्ड वन। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को 1 से डिवाइड किया मैंने, 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, राइट। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर। सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4, दिस वन। सो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2, नहीं होना चाहिए इस केस में, दिस इज द कंडीशन। लुक एट दिस आइडेंटिटी 15, ये भी मोस्ट Sir, कॉमनली यूज, यस। sir, is it any need to remind their proof? हाँ, Sir, I'm asking that is it any need that we have to remind their proof? नो, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। Sir, only identities. हाँ, आइडेंटिटी इज यूज्ड टू प्रूव द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज 3.3। Okay, sir. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, क्वेश्चन आपको अगर उन्होंने एग्जामिनेशन में ऐसे भी समटाइम क्वेश्चंस आ जाता है, सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। जनरली आता नहीं है, मे बी इफ समटाइम्स कम, तो क्वेश्चन आ गया cos 2x को प्रूव करो 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लिख दी उन्होंने। if they write the identity like this and they say that prove it, so like this you have to prove it, this identity. So basically identity is also a question, so we need to prove it. So and generally we use these identities to solve the questions from the exercise. The proof generally do not come in the examinations, maybe Sir, they come, the chance is very poor. Look at this question sir, 15. हाँ, sir, most common कौन सी होती है जो आ सकती है? प्रूफ देखिए आप, ये प्रूफ है, प्रूव हो रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन ही की तरह है, ये आइडेंटिटीज भी क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट कॉमन ये है, पीछे वाली आइडेंटिटी 14 15 आ तो कुछ भी सकता है पेपर में, इट इज नॉट डिसाइडेड दैट। ओके, लुक एट दिस आइडेंटिटी 15, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटी है sin 2x। सो sin 2x की आइडेंटिटी है, sin 2x किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और इट कैन बी आल्सो रिटन एज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। वन कंडीशन इज गिवन, x मस्ट नॉट इक्वल टू, x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, n पाई प्लस पाई बाय 2 के इक्वल। n पाई प्लस पाई बाय 2 का मतलब है अगर n इज एन इंटीजर, n इंटीजर है, ठीक है, n को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, इफ n इज 0, n पाई प्लस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n को 1 ले लेता हूं तो 1 लिया, पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई 3 पाई बाय 2, मीन्स 270। ये नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर, अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर, ऊपर भी tan x है। सो इफ इट कम 90, इफ अगर ये 90 हो गया तो व्हाट इज tan 90, tan 90 इज अनडिफाइंड, तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, नीचे डिनोमिनेटर में भी tan x यूज हो रहा है, अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट sin 2x विल बिकम अनडिफाइंड इन दैट केस, right? So that's why we do not take it, because tan 90 is undefined, तो अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाएगी, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आया कहां से, sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ये होती है sin x cos y प्लस cos x sin y। इसमें अगर y को x से रिप्लेस कर दें तो हमें sin 2x की आइडेंटिटी मिल जाएगी 2 sin x cos x, राइट। सो 2 sin x cos x इफ इट इज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें 1 से, इट्स 1, एंड डिवाइड ईच टर्म बाय cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए ईच टर्म को, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से और इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, तो ये देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट के बना जाएगा sin अपॉन cos tan 2 sin x cos x अपॉन cos, तो cos से एक पावर कटेगी एंड sin अपॉन cos इज tan x, so it can be written as 2 tan x upon 1 plus tan square x, right?
Look at this identity number 16 here. It is the identity for tan 2x. ये tan 2x के लिए identity है. tan 2x के लिए identity क्या है? 2 tan x upon 1 minus tan square x. इसका प्रूफ देख लीजिए. और जो 2x है यहाँ पे, it must not be equal to n pi plus pi by 2. n pi plus pi by 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा. सेम pi by 2 कंडीशन आ जाएगी, राइट? नाउ वी नो दैट tan x plus y की आइडेंटिटी हमें पता है. tan x plus tan y 1 minus tan x tan y. इस आइडेंटिटी में y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी, आइडेंटिटी नंबर 16, राइट? Some more identities are there. Let me paste it there. 16 हो गई है. सेवनटीन, 18, बेसिकली मेन चीज है इसमें आइडेंटिटी को रिमेंबर रखना. और ये आइडेंटिटीज 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th क्लास में भी इन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है हमें हर टाइम, ऑलवेज. सेवरल इन वेरियस चैप्टर्स we need these identities in class 12th also, so you must remember these identities. Okay, I hope this identity 16 is clear to you. Now this is identity number 17. In this identity it is sin 3x can be written as 3 sin x minus 4 sin cube x. तो ये भी मोस्ट कॉमन यूज आइडेंटिटी है, sin 3x. कैसे आई है? sin 3x can be written as, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2x plus x. And then I have applied the identity, sin x plus y की आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है. So sin x cos y plus cos x sin y. sin 2x की आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है, 2 sin x cos x as it is. cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई की है, 1 minus 2 sin square x, and this sin x as it is. Then 2 sin x I have taken common from here, 2 sin x, and it यहाँ पे देखिए ये cos स्क्वायर बन जाएगा, और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 minus sin स्क्वायर. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिए, sin x मल्टीप्लाइड विद दिस 1 एंड विद दिस 2 sin क्यूब x. आगे देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 sin x 2 sin क्यूब x sin x एंड दिस. सो दिस थिंग 2 sin cube x 2 sin cube x will become 4 sin cube x, or 2 sin x and sin x will become 3 sin x. So this is identity number 17, right? So I hope this identity is clear to you, and